कौन एलिवेटर इंडिया की CSR पहल से LNJP आँख अस्पताल के तीसरे तल्ला पर लोकार्पण मिलेगा बेहतर नेत्र उपचार। गया वजीरगंज काझा में नव भारतीय जागृति केंद्र द्वारा संचालित लोकनायक जयप्रकाश LNJP आँख अस्पताल काझा वजीरगंज के तीसरे तल्ला का भव्य उद्घाटन किया गया। यह लोकार्पण कौन एलिवेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ निदेशक श्री MP सरवन, पीपल कम्युनिकेशन और CSR श्री रूपुस डेविडसन CSR लीड और श्री रंजन आलोक एरिया मैनेजर द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। कौन इंडिया ने अपनी CSR पहल के तहत अस्पताल को आधुनिक नेत्र चिकित्सा उपकरण प्रदान कर अस्पताल की सेवाओं को और सशक्त बनाया है। नए नए उपकरणों में के लिस्ट इस प्रकार है: लैप नॉन कॉन्टैक्ट टोनीमीटर, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, केरोमीटर, स्कैन, हाई जूम, माइक्रोस्कोप, CBC मशीन, बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप सहित आधुनिक मशीनें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मरीजों के लिए 60 नए बिस्तरों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे अस्पताल की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस सहयोग से गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और औरंगाबाद जिलों की लगभग 90 लाख आबादी को गुणवत्तापूर्वक और उन्नत नेत्र चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होगी। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के मरीजों को अब उच्च स्तरीय इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। कार्यक्रम के दौरान नव भारत जागृति केंद्र के सचिव सतीश गिरिजा ने कौन एलिवेटर इंडिया और उसके अधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। मौके पर NBG के कार्यक्रम निदेशक गंधर्व गौरव आनंद, अभिनव, LNJP अस्पताल के प्रबंधक सौरभ राज, चिकित्सागण और डॉक्टर आशुतोष कुमार, आनंद कुमार, डॉक्टर नीतू कुमारी, डॉक्टर PN रंजन, श्री सुदर्शन पांडे सहित अनेक स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे। सभी ने इस सराहनीय कार्य के लिए प्रबंधक को बहुत ही आभार प्रकट किया। वहीं जो हमारे अतिथि आए थे वो अस्पताल को देखकर काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये बेहतर ही आपका पहल है और ग्रामीण इसका लाभ ले। आइए देखते हैं कि रिपोर्ट में धर्मेंद्र कुमार, गया, आकांक्षा न्यूज़। My pleasure to be here. We received a very warm welcome right from the moment we landed in Gaya till this time. We have been well received. Thanks for the very good hospitality which was extended to us. Very warm welcome at the airport and here in the hospital. I'm very happy to see the kind of service which is being done to the people who really need such wonderful service. I also had a little bit of an opportunity to interact with the patients here. I'm able to see how good the service is and how useful it is for them. So that is something which I have been able to observe. Great service is being given to the society by LNJP Eye Hospital. Wonderful staff. I saw every staff member here very enthusiastic, wanting to do a good service, and I see them smile always while interacting with the patients, and the way
how they have maintained this hospital spick and span, very clean, very neat. That is a wonderful thing. I wish the entire team, Satish sir and the entire management team here and all the staff, the very best. And it is a good opportunity for us to get associated and contribute in a modest way so that you can achieve your targets in terms of number of surgeries and number of patients you can take care. And I wish all the people in the districts around, I would request all of you, particularly people from media, please take this message to the people in the society. Let them make the best use of this good service here, and you can take this message strongly and let more people come and benefit. So, thank you so much. It was a wonderful. Old, 125 years old. We manufacture elevators and escalators, and we are one of the leading brands in the country. And so we take it as a privilege not only to elevate people from the ground floor to the top floor, but also people lives from bottom to up. So we thank you so much, NBJK team, for giving us an opportunity to serve the community. So I remember the conversation that happened with Anand back in 2021, I guess, right? So from then the discussion was happening for the CSR support. The first time we couldn't able to support for the proposals that they are given, and again the second year they came and like 3 or 4 times, and after that this has happened. And all the while Anand and Satish sir has been very patiently expecting things to happen, and they've been waiting for this. And today we take this as a privilege to be present. I mean, be here, seeing what it has been done to the people, and it is an honor for us to have a chance of. Have a chance of what could be done by us, through us. So we really thank NBJK team, the doctors, supporting staff, and everyone. Without you, this wouldn't be possible, and your commitment and your passion is what all that makes the success of the projects. So we would love to have a continued partnership. If everything goes in a perfect will, let's meet again. Thank you so much. Follow certain precautions after the surgery. First, we do not have to lift any heavy weight for at least 2 to 3 days. Second is we have to eat very soft food, like it doesn't harm our eyes. Then we have to take rest, at least bed rest for 2 to 3 days. In case of phaco, in case of faces, we have to take rest for 2 to 3 weeks. And next is patient has to they have to maintain a healthy hygiene. That is the most necessary part, because most of the village people, they rub their eyes with the it's unhygienic towel, so they have to take care of those things. What do you want to say about children? Because their skin time is very low. So regarding those things, I will ask, I want to say about the parents. Like, parents should indulge their children in the indoor activities. They should spend time with their children so that they can do activities like Physical playing games, activities. indoor games, physical activities, so that they do not indulge in mobile, computer games. So parents has to spend time with the children. Thank you. What's your name? My name is Introduce Dr. yourself. Neetu Kumari. I am from Bodh Gaya, Bihar. Okay. आँख जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसकी सुरक्षा जो है हम लोगों को दैनिक जीवन में करना चाहिए, और इसके जो कई तरह की बीमारियां होती हैं उसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए। एक तो है कि जो एजिंग के साथ जो है कैटरेक्ट होता है, उसके बारे में लोग अवेयर हैं, और समय पर सर्जरी करवाना चाहिए। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोग कैटरेक्ट को नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो जो है उसको पकने देते हैं। उसका अगर वो पक जाएगा ना और वो फट जाएगा, फिर आँख चला जाएगा। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर होना चाहिए कि वो है
दूसरा है कि अभी जो जैसे आप बता रहे हैं कि लोगों का जो है बच्चे भी जो है आजकल मोबाइल पर और लैपटॉप पर और युवक वगैरह जो है काफ़ी है, तो उसके कारण आँखों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और उसके कारण जो है रिफ्लेक्शन एरर, लोगों का जो लिविंग स्टाइल है, लाइफ स्टाइल ग्रामीण क्षेत्र में वो बदल गया है। पहले लोग मेहनत करते थे, चना वगैरह खाते थे, भूंजा खाते थे, अभी जो है पैक्ड फूड खाने लगे हैं ज़्यादा, लाइफ स्टाइल उसके कारण जो है आँखों की बीमारी खास करके जो है डायबिटीज़ बहुत बढ़ गया है। और हम ये मालूम गाँव ग्रामीण क्षेत्र में जो है डायबिटीज़ को पहचान करने का कोई साधन नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में शुगर टेस्ट करने का कोई इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि इन लोगों को डायबिटीज़ रहता है, लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, उसके बहुत बुरा असर रेटिना में पड़ता है। उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बीमारी कहते हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे, जो कि डायबिटीज। और ये जो है पहले जहाँ 4 से 5% था, अभी 14% पूरे भारत में हो गया, 14%। और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ज़्यादा लोग इलाज की व्यवस्था नहीं है, जाँच की व्यवस्था नहीं है। तो मुझे ये सुझाव देना रहेगा कि जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं ना, वो हर साल जो है कम से कम जो बुजुर्ग जो 40 साल से ऊपर हो गए हैं, रेटिना की जांच जरूर करवाएं, क्योंकि रेटिना का जो बीमारी होता है, रेटिना के अंदर हमारे हजारों तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, वो लीक फट जाता है, डायबिटीज में वो फट जाता है और ब्लड लीक करता है, और उसके कारण अंधापन जो आता है वो इरिवर्सिबल है, वो उसके बाद वो ठीक नहीं किया जाता है। कैटरैक्ट का तो आप सर्जरी करके ठीक कर देंगे, लेकिन रेटिना का अगर खराब हो गया तो वो नहीं ठीक कर सकते हैं। तो ये मेरा निवेदन रहेगा आप लोगों के माध्यम से कि लोगों को बताएं कि हर साल जो है जिनको भी शुगर की बीमारी है, मधुमेह है, वो हर साल रेटिना की जाँच जरूर करवाएं। दूसरा है कि चश्मा के बारे में भी जो है लोगों को मेरे करना रहेगा कि उसको भी लोग ग्रामीण क्षेत्र में नजरअंदाज करते हैं। सही पावर लेंगे तो आप सिर दर्द की बीमारी है, कई तरह की जो चीज़ मुश्किलें आती है ना, वो हल हो सकती है। चश्मा जो है 400-450 रुपये में आराम से हो जाता है। और हमारे यहाँ जो है सर्जरी आदि के लिए जो है आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान से हम लोग निबंधित हैं, हम लोग यहाँ फ्री सर्जरी करते हैं। रेटिना की भी सर्जरी फ्री यहाँ होती है, क्योंकि लगभग 80% लोगों को आयुष्मान कार्ड हो चुका है, इसलिए यहाँ पे फ्री सर्जरी होती है। और आज हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि कोन की मदद से जो है सारा बेड और सारा इक्विपमेंट मिला है। तो कोन के प्रति हम लोग बहुत हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, जिनके सहयोग से जो है ये जो हॉस्पिटल है ये लगभग 90 लाख पॉपुलेशन को सर्व करता है, जो नवादा, जहानाबाद और गया, इस तीनों के बीच में है। साथ साथ औरंगाबाद, शेखपुरा, नालंदा के भी काफ़ी पेशेंट आते हैं। तो 90 लाख है। हमारे यहाँ 4 सर्जन हैं, सभी बहुत क्वालिफाइड हैं। आप जो है मुझे लगता है कि 5 से 7 मिनट में एक कटा की सर्जरी करने की क्षमता रखते हैं। हर तरह का रेटिना, हर तरह की बीमारी है। डॉक्टर नीतू है, वो फुल टाइम यहाँ पे देती है, वो गया की बोधगया की है और वो बहुत क्वालिफाइड है। तो हमारे जितने भी डॉक्टर हैं सब बहुत क्वालिफाइड है। और ये जो लोगों को ये धारणा बनी है, मैं आप लोगों के माध्यम से, जो प्रेस मीडिया के माध्यम से जरूर ये संदेश लोगों को देना चाहता हूँ कि सर्जरी के लिए विंटर का, जाड़े का इंतजार नहीं करें। सर्जरी अब किसी दिन भी हो सकती है, क्योंकि सर्जरी में अब बड़ा टाँका नहीं लगता है। सर्जरी में अब एक छोटा सा छेद, जिसको लेप्रोस्कोपी का मेथड से कहते हैं ना, छोटा सा छेद होता है, उसे जो हमारा जो ओरिजिनल लेंस जो ख़राब हो गया है उसको हम लोग निकाल देते हैं और उसके जगह फिर आईओल जो इंट्राओकुलर लेंस जो है वो हम लोग लगा देते हैं। उसमें मुश्किल से जो है 5 से 7 मिनट 10 मिनट लगता है और उसके बाद पेशेंट आराम से देख सकता है। उसमें कोई टाँका नहीं है, इसलिए कभी जाड़ा के इंतजार नहीं करें। जहाँ उनको आँख की समस्या है, आज तुरंत यहाँ जाँच करवाएं। अगर कैटरैक्ट है तो उसमें गर्मी हो चाहे बरसात हो, हमेशा यहाँ पे सर्जरी मरीज को भर्ती भी रखा जाता है जी। कितने दिनों के लिए भर्ती जो है हम लोग कैंप से पेशेंट आते हैं तो शाम में लाते हैं, यहाँ पे सारा दवा वगैरह, एंटीबायोटिक वगैरह डालते हैं, सुबह में सारा टेस्ट करते हैं, उसका सभी ग्लूकोज वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह सब सही रहा तो उसको शाम में सर्जरी करते हैं। और दूसरे दिन, तीसरे दिन सुबह जो है डॉक्टर साहब जांच करके उनका आँख का कैसा सर्जरी हुआ है उसको रिलीज करते हैं। भ्रांति है कि 1 महीने बताइए। asking that why this hospital was open, why you supported this program. My name is MP Saravanan. I work for a company called Koni Elevators India Private Limited. Koni Elevators is 114 years old company. It is a Finnish-based company. In India, we have been operating for over 40 plus years, and we are headquartered in Chennai, Tamil Nadu. But we have offices all across, and very close to Gaya, we have our office in Patna. So we take care of providing elevator and escalator for the entire country. Why we have got ourselves associated with this particular project is that we came to know about the good service
NBJK has been doing in the states of Bihar and Chhattisgarh, and we also heard about this hospital LNJP and the kind of service which is given to the rural people here, and the need for eye care is very important in our country, and we understand that most of the blindness in our country can be cured with simple interventions, and LNJP hospital has been doing this service wonderfully well for the past several years, and this building which is providing service for 3 districts around Gaya, this is something which is catering to about 90 lakh people, so which is a very very happy association for us to be here and provide this service. And Kone Elevators has been associated in a small way. Our contribution is about roughly about a worth of 59 lakhs. The idea is to provide the medical equipments which would be useful for the patients, both patients who would be coming in as OPD, and we have also provided about 60 beds so that the inpatients could also be benefited. We feel that by associating with LNJP and NBJK, we can bring. We are using phacoemulsification technique for cataract surgery, and this is the most largest procedure which is being done by all the ophthalmologists all over the world. And this surgery has got a very good outcome, and it hardly takes 5 to 7 minutes to operate a cataract patient. No injections are required. We can use topical drugs only, okay? And then only 2 millimeter of incision is required for this surgery. So there is no need to avoid or to keep yourself away from many things for 1 month, or it hardly needs 2 or 3 days. The patient has to take precautions only for 2 or 3 days, and after that he can do all the work or all his normal works, and he can resume all his daily activities. सर इसको हिंदी में थोड़ा बता दीजिएगा, क्योंकि दर्शक वर्ग जो है ज़्यादा हिंदी ही समझ पाते हैं बिहार में। हाँ, तो नहीं, अभी मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी जो आधुनिक जो कैटरेक्ट सर्जरी का जो टेक्निक है जो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें फेकोइमल्सिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोतियाबिंद की सर्जरी जो आधुनिक तरीके से होती है वो फेकोइमल्सिफिकेशन ही होती है। इसमें आपको बहुत छोटा सा इंसिजन 2 मिलीमीटर का लगता है, जिसके कारण मरीज को बहुत ज़्यादा परहेज और ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 से 3 दिन के बाद मरीज अपना जो भी नॉर्मल क्रियाक्रम है, जो भी अपना उसका कार्यकलाप है, वो उसको स्टार्ट कर सकता है और वो कर सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन या बहुत ज़्यादा परहेज ये सब का कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें जो लेंस भी हम इस्तेमाल करते हैं, फोल्डेबल लेंस, वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो एस्फेरिक है, स्क्वायर एज है, ठीक है। तो और वो हाइड्रोफोबिक लेंस है, जिसके कारण झिल्ली नहीं बनता है। विजुअल आउटकम बहुत अच्छा होता है, ठीक है। चमकता कम है, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन देता है, तो बहुत सारा इसका फ़ायदा है। मतलब आपका कहना है कि जो भी मरीज है बस 4 से 5 दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी। हाँ, मैक्सिमम मरीज जो है वो अपना 5 दिन। अभी के टाइम में देखा जा रहा है सर, लाइट जो है काफ़ी ज़्यादा आंखों पे इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि पहले जो है वो येलो बल्ब आती थी और अभी के टाइम में LED बल्ब आती है, जो कि ज़्यादा आंखों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। इस पे क्या आपका मानना है? ऐसा है कि जो भी स्क्रीन का जो है, खासकर चूँकि अभी के एज में क्या हो गया है कि हम बहुत ज़्यादा लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ने लिखने या और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, और इवन जो बच्चे हैं वो तो बहुत गेम एडिक्ट भी हो गए, वो खेलते हैं, तो ये स्क्रीन से जो लाइट निकलता है ये यूजुअली हमारे रेटिना को बहुत हार्म करता है। और इसका जो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि जो हम कन्वर्जेंस, एक्चुअली एक प्रोसेस होता है कन्वर्जेंस की, जब हम नए नज़दीक का काम करते हैं तो हमारा दोनों आई बॉल एक साथ आ जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ है कि मायोपिया का इंसिडेंस, जो दूर देखने का बच्चा लोगों का जो कम हो जा रहा है, जिसके कारण उनको चश्मा लग जा रहा है, ये इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसका बहुत बड़ा कारण ये मोबाइल है। इसलिए कोई भी बच्चा जो हमारे पास मायोपिक है आता है, तो हम उनके गार्जियन और बच्चे को ज़रूर ये बात समझाते हैं कि इनको जितना टाइम स्क्रीन टाइम कम होगा, ये पावर उतना कम बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मोबाइल देखता है बच्चा, मायोपिया उतना ज़्यादा इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये सर एक सवाल और सर, डायबिटीज़ के पेशेंट अंधापन का शिकार हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा डायबिटीज अभी हो गया है, तो उसके लिए क्या सलाह देंगे सर कि कैसे बचे वो? सबसे पहला तो ये है कि जो हमारा खान पान और रहने का जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है, उसको हमें चेंज करना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना है,
ठीक है, हमें अपने खाने पीने पे कंट्रोल रखना है। हम बहुत ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा या जिसको हम लोग हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स कहते हैं, उसको अवॉइड कीजिए, खास करके जो 40 साल के ऊपर है। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर अपना ब्लड शुगर जांच कराएं, और अगर किसी को मधुमेह होता ही है, एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ अ डायबिटिक कैपिटल, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप उसको रेगुलर जो है जाँच करवाएँ। ठीक है, आंखों की जांच रेगुलर, जैसा कि सर ने बताया, हर साल एक बार जरूर अपने पर्दे की जांच कराते रहें, और ब्लड शुगर को फ्लक्चुएट होने से रोकें। अगर एक बहुत कॉमन धारणा है कि इंसुलिन नहीं लेना है, ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इंसुलिन ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका ब्लड शुगर नहीं कंट्रोल होता है दवा से या नहीं होता है, तो आप रेगुलर फिजिशियन को विजिट करें, और अगर वो इंसुलिन प्रेस्क्राइब करते हैं तो इंसुलिन लें, लेकिन शुगर को बढ़ने नहीं देना है शरीर के अंदर में, क्योंकि वो रेटिना को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। आपका हॉस्पिटल जो है वो अभी आई के इसमें जा रहा है, आंखों के लिए ज़्यादा स्पेशलिस्ट है। इज देयर एनी अदर डिजीज फॉर अस? नो, वी आर ओनली डीलिंग विद आई डिजीजेस बिकॉज वी आर सोनली आई हॉस्पिटल। ठीक है, सो एनी फ्यूचर एस्पेक्ट? एनी फ्यूचर एस्पेक्ट? सर दैट विल बी दैट कैन बी कोई फ्यूचर कि हम अदर स्पेशलिटी का इलाज यहाँ पे करें, या मतलब आई के अलावा कोई अदर बीमारी का इलाज इन फ्यूचर। देखिए, हम लोगों ने आई को इसलिए चुना है ना कि जो सरकारी अस्पताल है, चाहे PSC हो चाहे CSC हो, उसमें बाकी सभी बीमारियों का इलाज होता है, लेकिन आँख का जो है रेटिना का हो, चाहे डायबिटीज इसका चश्मे का भी जो है इलाज नहीं हो पाता है, रिफ्लेक्शन एरर का भी नहीं इलाज होता है, मोटाबिन की भी सर्जरी नहीं होती है। तो 80% आबादी तो ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज आज़ादी के 77 साल के बाद भी जो है आँख की इलाज की, आँख के मोटाबिन सर्जरी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो नवभारत जागृति ने इसी कारण आई को क्षेत्र को चुना है, और हमारे जो सर्जन हैं क्वालिफाइड है, और हम लोगों ने ये रखा है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों को हम सर्व करेंगे। और यहाँ पे हमको लगता है कि 90% पेशेंट तो ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इलाज की व्यवस्था नहीं है। और हम लोग यहाँ पे लगभग फ्री सर्जरी करते हैं, क्योंकि आयुष्मान के तहत भी रजिस्टर है, DBCS में भी रजिस्टर है, और कई तरह के अदर ग्रांट भी हम लोग को मिलते हैं, जिससे कि हम फ्री सर्जरी कर सकें। फॉर पेशेंट